Good morning, class. Up to last class, we have studied about electric power and electric energy. Okay. Now we will proceed further and we will learn about a unit which is used for the measurement of electric energy commercially. Commercial unit means while selling electric energy or while purchasing electric energy, what will be the unit for the measurement of energy? We know that in science, the unit of energy, whatever be the type of energy, whether it is heat energy or it is potential energy or kinetic energy, the unit of energy is joule. But commercially, when we sell or we purchase electric energy, in that case, we use a different unit, and that unit is known as commercial unit. Okay. Now, first of all, we will see what is formula for electric energy. We know that power is energy upon time, so from that formula we can say electric energy, it is equal to electric power into time. Energy is equal to power into time. So if power of an appliance is taken in kilowatt, किसी भी अप्लायंस की जो पावर है, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसकी जो पावर है, that is taken in kilowatt and time in hour. टाइम को आप आवर्स में ले लें, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट इनटू यूनिट ऑफ टाइम इज आवर. सो किलोवाट ये मल्टीप्लाई है, मींस दीज आर टू डिफरेंट यूनिट्स, दे आर सेपरेटेड बाय ए गैप. किलोवाट एंड आवर. किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर एंड आवर इज यूनिट ऑफ टाइम. सो overall unit is kilowatt hour. This kilowatt hour is known as commercial unit of energy. Kilowatt hour is commercial unit of energy. Okay. So what is 1 kilowatt hour? So this is the amount of energy consumed by an electric appliance in 1 hour whose power is 1 kilowatt. अगर हम पावर को 1 किलोवाट ले लें, टाइम को 1 आवर ले लें, देन मल्टीप्लाई देम, यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी 1 किलोवाट आवर. ओके. सो 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट एंड 1 आवर. नाउ चेंज इट इनटू जूल. 1 किलोवाट मींस 1000 वाट एंड 1 आवर मींस 3600 सेकेंड. 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो 1 आवर में 3600 second. Now what is watt? It is joule per second. Okay, so second to second cancel. This is 3600 and 000 multiply कर दें, so this is 3.6 into 10 की power 6 and the unit is joule. So using this formula you can change kilowatt hour into joule. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 की power 6 joule. This is the conversion. Next, whenever you use an electric appliance, it has some rating. What is the meaning of rating? Rating contains two things. One, information about power consumption and its operating voltage. आप अभी भी चाहें, घर में बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, एक बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, आप उस पर पढ़कर देखें, आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा. फॉर एग्जांपल बल्ब 100 वाट 250 वोल्ट, ये डिफरेंट हो सकता है, 40 वाट हो सकता है, 60 वाट हो सकता है, ओके, 220 वोल्ट हो सकता है. बट इफ ऑन ए बल्ब इट इज मेंशन्ड 100 वाट 250 वोल्ट, इट मींस बल्ब कंज्यूम्स 100 वाट पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 250 वोल्ट. मतलब आप बल्ब को 250 वोल्ट पर अगर आप ऑपरेट करते हैं तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, मींस 100 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा. So this is the meaning of rating. Now there are some practical applications of heating effect. Heating effect हर जगह required नहीं होता, कुछ जगह heating effect required होता है और कुछ जगह heating effect required नहीं होता. Now we will study where heating effect is required. For example, heater, geyser, immersion rod, electric iron, electric kettle, electric toaster, all these things works on heating effect of current. इसमें करंट फ्लो होती है और हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट का हम यूज करते हैं. ओके.
सेकेंड, इलेक्ट्रिक बल्ब, इट प्रोवाइड लाइट बाय हीटिंग ऑफ फिलामेंट। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है एंड दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड इट प्रोवाइड यू लाइट जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ फिलामेंट। टंगस्टन की क्या खासियत है? टंगस्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मींस ये इजीली मेल्ट नहीं होता। सो पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट ऑफ बल्ब एज हीट, व्हेन हीट स्टार्ट रेडिएटिंग बल्ब अपीयर्स टू बी ग्लोइंग। पहले वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा और करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, देन बल्ब जो है वो हीट रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा और बल्ब आपको ग्लो करता हुआ अपीयर होगा। ओके, सो ग्लोइंग ऑफ ए बल्ब इज आल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये डी हटा दें यहां से। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन सर्किट्स। आपने देखा होगा घर में हम जहां भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन स्टार्ट करते हैं वहां पर एक फ्यूज वायर लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज इज बेसिकली ए सेफ्टी डिवाइस, ओके, एंड इट्स फंक्शनिंग आल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। ये कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है? व्हेन करंट इन सर्किट इंक्रीजेस बियॉन्ड ए परमिटेड वैल्यू। देखिए घर में हम जब भी कोई सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट के अंदर एक करंट की अलाउड वैल्यू होती है। अगर करंट की वैल्यू उस परमिटेड वैल्यू से इंक्रीज होती है, इसको हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ फ्यूज, देन हीट प्रोड्यूस्ड आल्सो इंक्रीजेस एंड ड्यू टू हीट फ्यूज मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में 3 एम्पियर की करंट अलाउड है तो आप जो भी फ्यूज वायर यूज करेंगे उसके थ्रू करंट 3 एम्पियर तक फ्लो होगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ द वैल्यू ऑफ करंट 3 एम्पियर से इंक्रीज हो जाएगी तो वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और आपका जो सर्किट है वो सेफ रहेगा। ओके, सो इन दिस वे ए फ्यूज वायर, it is used as a safety device. Now, how do we select a particular fuse? Okay, it is basically based on device which we are using. Fuse wire का selection कैसे होता है? The rating of fuse wire, it should be slightly higher than current flowing in circuit. आपके सर्किट में कितनी करंट अलाउड है, फ्यूज वायर उससे स्लाइटली हायर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डिवाइस है और उसकी रेटिंग क्या है? 1000 वाट 220 वोल्ट। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू VI। तो आप बताएं कितनी करंट अलाउड है? I इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर इज 1000 एंड वोल्टेज इज 220। डिवाइड देम, इट मींस दैट डिवाइस विल ड्रॉ ए करंट ऑफ 4.54 एम्पियर। अब 4.54 एम्पियर है तो फ्यूज वायर आप जो कनेक्ट करेंगे दैट शुड बी ऑफ 5 एम्पियर, स्लाइटली हायर। पावर रेटिंग्स जो आती हैं फ्यूज की वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस टाइप से राउंड फिगर्स में आती है। So if the permitted value is 4.54 ampere, you will choose a fuse of slightly higher value. It means approximately or a minimum of 5 ampere. Okay. So in this way, a fuse wire is selected. Next, we are discussing some specific materials और इनका कुछ particular use है। ये सिर्फ knowledge के लिए मैंने add किया है। First is tungsten. आपको पता है that tungsten is a metal. W is its symbol. What is its specialty? Its resistivity is low. You know that resistivity never depends on length and area of cross section. Okay, but resistance depends. So it has low resistivity but high melting point. Okay, अब अगर आप एक thin wire लें, area of cross section is small. Long wire लें, length is large. So thin wire and long wire, it provides high resistance. आपको पता है resistance is directly proportional to length. तो लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर थिन वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस हाई होगा। सो थिन एंड लॉन्ग टंगस्टन वायर, इट प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हॉट इनफ, वायर एमिट्स लाइट। अब बल्ब को आपने कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इस फ्यूज वायर के टंगस्टन वायर के थ्रू पास होगी, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी और जब ये sufficiently hot हो जाएगा, in that case it will start emitting light. But टंगस्टन के साथ एक प्रॉब्लम है,
At high temperature, tungsten reacts with oxygen. टंगस्टन सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड. आपको मालूम है मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं. सो इट ऑल्सो मेक मेटालिक ऑक्साइड. और इससे जो आपका टंगस्टन वायर है वो मेल्ट हो जाता है. टू अवॉइड इट, इस चीज को अवॉइड करने के लिए बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैस लाइक आर्गन, नियोन एंड नाइट्रोजन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट. आपको मालूम है आर्गन एंड नियोन दे आर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, और नाइट्रोजन को फिल किया रहता है. ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा. इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर तो जो फिलामेंट है इट विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और उस केस में बल्ब के फिलामेंट की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके. सेकेंड इज नाइक्रोम. निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन. nickel 60, chromium 12, manganese 2 and iron 26%. This is an alloy which have high resistivity and high melting point. And the important thing, it do not react with oxygen at high temperature. Okay, melting point high है, resistivity high है, oxygen से react नहीं करता. That is why it is used as heating element in heating devices. आपके जितने भी heating devices हैं, whether it is heater or geyser or electric iron, इन सभी के अंदर जो heating element है that is made up of nichrome. Okay. The third group of alloys, they are constantan and magnin. Constantan, it is made up of copper and nickel. Copper 60, nickel 40. Magnin, it is copper, manganese, nickel. Okay. दोनों की क्या खासियत है? दैट रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मींस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी these alloys are used for making standard resistances. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जहां भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की जरूरत होती है वहां पर हम कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का यूज करते हैं. इनमें रस्टिंग नहीं होती, लाइफ अच्छी है. फोर्थ, टिन और लेड अलॉय. ये भी एक अलॉय है मेड अप ऑफ टिन एंड लेड एंड इट इज यूज्ड टू मेक फ्यूज वायर. इसकी क्या खासियत है? इट हैज लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके. एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेटिंग ऑफ फ्यूज. मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा ये उस फ्यूज की रेटिंग पर डिपेंड करेगा. मींस अगर किसी फ्यूज वायर की रेटिंग 1 एम्पियर है, मतलब 1 एम्पियर से बियॉन्ड करंट होगी तो वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा. इसी टाइप से अगर किसी फ्यूज वायर की रेटिंग 5 एम्पियर है, इट मींस इट विल नॉट मेल्ट एट 1 एम्पियर. If the current goes beyond 5 ampere, then only this fused wire get melt. Okay, so these are some special type of alloys and metals, and ये useful information आपको सिर्फ in knowledge purpose से दी है. Okay, because these metals or alloys they are widely used while studying electricity. Okay, that's all for today, and this is the completion of chapter. In next segment we will learn some numericals also. Okay, so that's all for today. Have a good day.